بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل غسل کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں اپنے تمام ویوز اور دوستوں سے عرض کروں گا کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غسل میں کس کس دن غسل کرنا سنت ہے، کب کب غسل کرنا فرض ہے، یہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، چاہے غسل اس پہ فرض ہو یا نہ ہو، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ بقرہ عید پر غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو غسل کرنا سنت ہے۔ احرام باندھتے وقت بھی سنت ہے۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، اسے یاد رکھیے گا۔ غسل میں 3 فرض ہیں اور ان فرضوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پہلا فرض ہے غرارے کرنا، کلی کرنا۔ کلی کرنا، غرارے کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا اور غرارے کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اچھا، ان دونوں فرضوں کے اندر احتیاط یہ ہوگی کہ جب بھی کسی شخص کا روزہ ہوگا، رمضانوں میں یا رمضانوں کے علاوہ، تو وہ ناک کی نرم ہڈی تلک یا غرارے نہیں کرے گا روزے کی صورت میں۔ روزے کی حالت میں وہ شخص غرارے نہیں کرے گا، صرف کلی کر کے تھوک دے گا، اور ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی نہیں چڑھائے گا، صرف ناک کو صاف کر لے گا، ناک میں پانی ڈال لے گا، اوپر تلک نہیں، ناک کی نرم ہڈی تلک کھینچے گا نہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب ناک کی نرم ہڈی تلک چڑھانے کے لیے تھوڑا سا اوپر کھینچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ دماغ کے ذریعے حلق کے اندر آ جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس کی یہ ایک، اگر کسی پہ غسل فرض ہو گیا روزے کی حالت میں، تو وہ جب روزہ افطار کر لے تو یہ دونوں عمل اس وقت کر سکتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد غرارے بھی کر لے اور ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی چڑھا لے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 فرضوں میں جو میں نے بتائے یہ احتیاطیں کرنی ہے۔ تیسرا فرض غسل کا ہے سارے ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ جو بھی جسم دکھتا ہے وہ کہیں سے بھی بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، سب جگہ پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اب احتیاطاً اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی گردن میں پیچھے سے ایسے موٹی ہوتی ہیں، بل چڑھے ہوئے ہوتے ہیں گردن پہ، یا پیٹ دبا ہوا ہوتا ہے، تو ان سب جگہوں پہ بھی پانی اٹھا کر کے لگانا یہ فرض ہے۔ بغلیں سوکھی رہ جاتی ہیں، ادھر بھی پانی لگانا ضروری ہے۔ سورین پیچھے جو ہوتی ہیں، سورین، اس کو سورین کہتے ہیں، ادھر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ٹونڈ، جس کو ہم ناف بھی کہتے ہیں، ناف ٹونڈ، اس ٹونڈ ناف کے اندر بھی پانی انگلی چلانا، گیلا کرنا، اس کو بھی فرض ہے۔ تو یہ 3 فرض ہو گئے غسل کے: غرارے کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی غسل کرنے کے لیے جائیں تو
बरहना होकर के गुसल खाने के अंदर या वॉशरूम में आप ना कुछ ज़बान से पढ़ें, कुछ भी ना पढ़ें और ना कुछ बोलें, सिर्फ अपना गुस्ल करें। अच्छा, शावर से गुस्ल करने का बहुत आसान तरीका है। जिसके यहाँ शावर है वो तो अच्छा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि शावर से गुस्ल करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। शावर जिनके घर में होता है उससे गुस्ल करना बहुत इजी है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि कब कब फ़र्ज़ है गुस्ल करना, कब कब फ़र्ज़ है वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि जब भी आप अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं या सोबत करते हैं उस वक्त दोनों पे गुस्ल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इत्लाम होने की सूरत में गुस्ल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। कि किसी भी तरीके से आपके आला मखसूस ख़ास से जो है कि मादा खारिज होता है तो उस सूरत में भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से गुस्ल करना, ये बारीक बारीक पेचीदगियाँ हैं, ये उलमा किराम से या किताबों के ज़रिए आप अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो काफ़ी लंबी मेरी वीडियो बन जाएगी। तो मैं चंद मोटी मोटी जो गुस्ल करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। वैसे तो वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन फिर उसके हवाले से भी इंशाल्लाह और वीडियो बनाएंगे। तो यही अर्ज़ है कि गुस्ल याद रखें 3 फ़र्ज़ हैं और 3 फ़र्ज़ हैं और कब कब करना फ़र्ज़ है, ये मैंने बता दिया है। अच्छा, शावर का बता रहा था, तो शावर वाशरूम में गए, बराना हो गए, अब शावर खुला। शावर खुलने के बाद सबसे पहले निचला हिस्सा जिस वजह से हमारी निजात लगी थी, जिस जगह पे हमारी निजात लगी हुई थी उस जगह को धोना है। टूंडी से लेकर के नीचे तक का सारा हिस्सा, यानी नाभ से लेकर के नीचे का सारा हिस्सा, गंदगी नापाकी वो हटानी है, दूर करनी है शावर के ज़रिए। शावर खुला हुआ है ना ऊपर से, तो पहले ये नीचे का हिस्सा अपना सारा आप इस तरीके से पाक कर लें, साफ़ कर लें। अब ये पाक साफ़ हो गया, आप मुतमईन हो गए, आपका ज़हन बन गया कि साफ़ हो गया मैं, तो अब शावर के ज़रिए कुछ पानी को हाथ से इस तरीके से ये सारा नीचे से पानी, अब आपने पानी डाल लिया सारी जगह पे, गंदगी जो पानी आपसे निकला था वो शावर के ज़रिए, हाथों के ज़रिए शावर से ये पानी सारा बहा दें। मुतमईन हो जाएं कि गंदा पानी सारा बह गया होगा। इसमें एक एहतियात ये करें कि कोई बाल्टी या कोई मग्गा वगैरह वहाँ पर रखा हुआ ना हो उस वक्त, जिस वक्त आप अपनी निजात गलीज़ा को हटा रहे हों, क्योंकि छींटे उस बाल्टी में जाएंगे या मग्गे में जाएंगे। आप तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप तो शावर से गुस्ल कर रहे हैं, लेकिन दूसरा घर का फर्द आकर के उस बाल्टी में हाथ डाले या इस्तेमाल कर ले तो वो बाल्टी का पानी तो नापाक हो गया है। या खाली बाल्टी पड़ी है तो उसको भी उस साइड पे या तो उल्टी करके रख दें या फिर बाहर निकाल दें। मग्गा या कुछ भी चीज़ वहाँ ऐसी रखिए कि आपका निजात का पानी वहाँ उसके अंदर चला गया, तो वो सब चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन दूसरा आकर के इस्तेमाल करेगा तो वो नापाक हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि करीब में कोई चीज़ ना हो, अगर हो तो वो उल्टी करके रख दें ताकि उस पर छींटे जाएं भी तो वो जब वो सीधी करेगा कोई भी शख्स उसको, तो उसमें नापाकी नहीं शामिल होगी। ठीक है जी, ये निजात हमने धो ली, मुतमईन हो गए, नीचे का हिस्सा हमने धो लिया नाभ से लेकर के नीचे पाँव तलक। अब इसके बाद हमने गरारे करना है, जो मैंने बताया कि रोज़े की सूरत में नहीं करेंगे, रोज़े के अलावा हम गरारे करेंगे 3 मरतबा। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे रोज़े की हालत में, जो मैंने बताया कि रोज़े की हालत में नहीं चढ़ाएंगे नाक की नरम हड्डी तक, सिर्फ नाक पर पानी लगा लेंगे। लेकिन जब रोज़ा नहीं है तो अब जो है ना हम नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे। ये 2 फ़र्ज़ जो हो गए, ये तरीक़ेकार में आ गए। पहले नीचे का हिस्सा धोया, फिर गरारे करे हाथ वाथ धोने के बाद,
नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया और सारे जिस्म के ऊपर पानी 3 मरतबा इस तरफ पानी डाल लिया, 3 मरतबा इस तरफ शावर से पानी डाल लिया, फिर सारे जिस्म के ऊपर पानी बहा दिया। ये तरीक़ेकार है इसका। अच्छा, अब किसी के यहाँ शावर नहीं है, वो क्या करे? तो वो टूटी खोल के जब बाल्टी भरता है तो उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा है। उसमें एहतियात इतनी ज़्यादा है कि आपको ख्याल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बारीकी को समझना पड़ेगा कि जब आपने बाल्टी भर ली, लेकिन बाल्टी भरने से पहले तो आपको ये काम करना है कि बाहर ही या नलके में ही पहले आप नलका खोल के बाल्टी नहीं भरेंगे, पहले आप अपने हाथ धोएंगे, कोहनियों समेत दोनों हाथ धो लेंगे, उसके बाद बाल्टी भरेंगे। अब बाल्टी भर ली, अब इसमें एहतियात ज़रूरी है। अब शुरू कर रहे हैं हम अपना गुस्ल करना, ठीक है ना। बाल्टी भरने के बाद सीधे हाथ से मग्गा पकड़ना है, मग्गे को जिस्म से टच नहीं करना, नाभ से लेकर के पाम तक सारा वही धोना है जो पहले हमने शावर वाले तरीके से किया था। ये सारा निजास्त धो लेनी है। अब इसमें एहतियात ये करनी है कि बाल्टी के अंदर वो निजास्त वाले कतरे ना जाएं, ना गिरे, ना ये मग्गा हमारे जिस्म से टच हो। अगर ये मग्गा उस गंदे पानी से टच हो जाएगा, जिस्म से टच होगा, गिलाज़त से टच हो गया, तो ये बाल्टी के अंदर हमने डाल दिया तो ये बाल्टी का पानी नापाक हो जाएगा, सारा गुस्ल नहीं होगा। और इसके कतरे भी ना गिरें। धोते वक्त ये एहतियात ज़रूरी करनी है। आराम आराम से अपने हाथ अपने पाँव, नाफ के नीचे, सब जगह से आराम आराम से आपने ये अमल कर लेना है। उसके बाद फिर वही तरीका है, गरारे करना 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। यानी हाथ धोने के बाद आप मुतमईन हो गए कि मेरी निजात निकल गई, पानी भी डाल दिया नीचे, हाथ भी मैंने अब धो लिए। निजात साफ़ करने के बाद हाथ धोने, ये धो लिए। अब गरारे करेंगे 3 मरतबा, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे 3 मरतबा सीधे कंधे पे पानी डालेंगे, 3 मरतबा उल्टे कंधे पे पानी डालेंगे, फिर सारे जिस्म के ऊपर पानी डाल लेंगे। ये एक दूसरा तरीका बाल्टी से गुस्ल करने का। अब किसी के यहाँ पर नलका भी नहीं है, वो अपने वॉशरूम में बाहर से पानी भरता है, बाहर से पानी लेके अंदर वॉशरूम में जाता है, तो उसमें गुस्ल वाले शख्स को ये एहतियात करना ज़रूरी होगी कि पहले वो अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत घर के किसी फर्द से भी पानी डलवा के धो ले, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपनी बाल्टी भरे, यानी टैंक में से पानी निकाल रहा है, या टंकी होती, नांदी होती है, टंकियाँ होती प्लास्टिक की, लोहे की, अब उसके अंदर उसने हाथ डाल भी दिया तो वो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले अपने हाथ धुलवा लिए, ठीक है। अब ये पानी निकाल के बाल्टी में भर रहा है और बाल्टी भर के फिर ये वॉशरूम में ले जा रहा है। ये एहतियात करना ज़रूरी है। और तरीका फिर वही है जो मैंने बताया बाल्टी से गुस्ल करने का, कि उसमें छींटे ना जाएं, मग्गा जिस्म से टच ना हो। और गुस्ल के हवाले से बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं किताबों में। उलमा किराम से रुजू करें, उलमा किराम से मालूमात करें, या जिसको इल्म है उससे मशवरा करें, उनको बताएं, सीखें, समझें। ये ज़रूरी है। इल्म हासिल करना, इतना अपनी ज़रूरत का इल्म कम से कम बंदा हासिल करे, ये फ़र्ज़ है। तो इसमें शर्माए ना, झिझके ना। बहुत सारे लोगों को तो गुस्ल के फ़र्ज़ अभी पता पड़े होंगे कि गुस्ल में भी फ़र्ज़ होते हैं क्या, गुस्ल में भी इतनी एहतियातें करना होती हैं क्या। भाई ये सब कुछ सीखने से आएगा, समझने से आएगा, ऐसी सोहबत में बैठने से आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो किसी का समझा उसे याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।